Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर के, लेकिन उससे पहले हम करेंगे रिवीजन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। जैसे हम बात करेंगे WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021, और इसमें बताया गया कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। मतलब डिप्लीट इन अ सेंस कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। डिप्लीट इन अ सेंस जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, अब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। वो आपका देख रहेंगे, आइस मेल्ट होती है, लेकिन आइस में हमारा मैक्सिमम क्लीन वाटर होता है। ओशंस में जाएंगे, ओशंस में तो खारा पानी है, उसके लिए हमें डीसैलिनाइजेशन या फिर और ज़्यादा तरीके निकालने पड़ेंगे जो हमारे अभी कॉस्टली होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन विद टाइम हमें न्यू टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी ताकि हम जो पॉपुलेशन है अर्थ की उसको प्रॉपर वाटर से फीड कर पाएँ। इवन अभी काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे, और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या क्लीन वाटर अभी नहीं मिलता है उनको डेली बेसिस पे। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आज के टाइम की। वो क्या है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नासा के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया कि जो हम पूरे अर्थ के वाटर रिसोर्सेज हैं उनका हम सर्वे करेंगे। यह भी रिसेंटली न्यूज़ लॉन्च की गई है, तो ये पता होना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, नासा ने। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स। किनको मिला? बसील जोसेफ को, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन बने हैं नए चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। वो रहेंगे श्री साजी केवी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किनको अपॉइंट किया है एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट। वो रहेंगे जेरेमी फरार, और इनका काम क्या रहेगा, जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको जो वो मैनेज करना, उनका देखना क्या वो काम कर रहे हैं, काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो एक मैनेजर का काम होता है बेसिकली, तो वो चीफ साइंटिस्ट बने हैं। और यही आपके नई रिसर्च वर्क करेंगे, यही ध्यान रखेंगे किन चीज़ों पे हमें आगे वर्क करना है, क्या क्या रिसर्च में ध्यान देना है, साइंटिस्ट को लेके टीम को आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें इनके अंडर रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है एयरबीएनबी। हम जानते हैं एयरबीएनबी एक कंपनी है जो कि आप अपने घर को, होटल को, या जो होटल्स की तरह लॉन्च कर सकते हो, बुक करा सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो, यह है एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी ने अभी एक MOU साइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल के साथ
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, यहाँ पे बीचेस को अच्छा बनाए, गाइडलाइंस लाएं। जैसे अभी जो एक रिसेंट, अगर आपको पता होगा तो, जो बियर कंज्यूम करते थे पहले, आप बीचेस पे इजीली बिना किसी दिक्कत के कर सकते थे, लेकिन अब उस पर बैन लगा दिया है, यू कैन नॉट कंज्यूम एल्कोहल ऑन द बीच। देन गोवा की ही बात करें, साउजाओ फेस्टिवल यहाँ पर होता है, और नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी आपका यहीं पर है। नेक्स्ट देखें तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ, अगर पूछा जाए मलेरिया से रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की थी। और इन्होंने बताया कि कोविड-19 के जो डिस्ट्रप्शंस हुए, जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, जो लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें 63,000 लोगों की डेथ देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। और डेथ का कॉज मलेरिया था। एनोफिलिस मॉस्किटोस, फीमेल मॉस्किटो से ये मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 दिसंबर को। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हैं सुनील जी। ये कौन थे, एडिशनल डायरेक्टर हैं प्रसार भारती के, और इनको क्या अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट डाटा यू नीड टू रिमेंबर। फिर आ जाते हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं नए चीफ मिनिस्टर गुजरात के, वो हैं भूपेंद्र पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। भूपेंद्र पटेल अगर पूछा जाए बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलो यहीं पे आपका होमवर्क भी दे देता हूँ, एक हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी बता दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है, मोपा में है, गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो हो गए रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि डीएसएस नाम से ये एक सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि राइसेट एंड वेदास को यूज़ करेगा। ये राइसेट और वेदास क्या है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने का रीज़न ये था कि सैटेलाइट से हम इमेजेस को खींच सकें। मतलब सैटेलाइट से जो इंडिया की आपकी एग्रीकल्चर लैंड है फॉर एग्जांपल, उसकी हम फोटो खींचेंगे और वो फोटो हमारी इतनी अच्छी तरीके से खींची जाएंगी, इस टेक्नोलॉजी से खींची जाएंगी कि हम उसको ईजिली लोग फार्मर्स को हेल्प करने में मदद कर सकेंगे। तो आप ये देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा मिलके ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था। इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया था इसके लिए, और दिस एमओयू के अंडर एक राइसेट जो कि है रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1A, एंड ये इसी के साथ साथ हमने देखा वेदास। वेदास क्या रहेगा, वेदास की फुल फॉर्म जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वेदास रहेगा आपका विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। आई रिपीट, वेदास विजुअल ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम, ये आपका वेदास रहेगा। और राइसेट जो गया रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1A, ये सैटेलाइट रहेगी जिनकी मदद से हाई रेजोल्यूशन इमेज खींची जाएंगी, एंड वो उनकी मदद से आपका फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प करने की मदद की जाएगी थ्रू दिस कृषि डीएसएस, दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसरो की बात करें तो इसरो के चेयरपर्सन कौन है, एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, बेंगलोर कर्नाटका में। फिर बात करते हैं असम की। हम जानते हैं जीआई क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी लोकेशन के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो वहाँ पे वो फेमस हो, जैसे अगर हम बात करें सैफरन की तो जम्मू एंड कश्मीर में ये फेमस है, तो ऐसे ही मिथिलिया मखना बिहार में फेमस है और उसको भी अभी जीआई टैग मिला था। तो अभी रिसेंटली असम का कौन सा प्रोडक्ट है जिनको अभी जीआई टैग मिला, वो है गमोचा। इसको गमछा भी कह सकते हैं आप। जैसे ये देख रहे हैं, ये रेड लाइंस ऑन द बॉर्डर और बीच में ये कॉटन क्लॉथ होता है। ठीक है, इस कॉटन क्लॉथ को जिसको गमछा या गमोचा भी बोला जाता है, वहाँ पर हम गमछा बोलते हैं लोकल भाषा में, तो इसको क्या मिला है अभी, जीआई टैग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो कि एक हैंड वीवन रेक्टेंगुलर कॉटन क्लॉथ रहेगा रेड बॉर्डर्स के साथ। ठीक, और ये कहाँ का है, असम का। इसी से याद रखेंगे 2017 में इस जीआई टैग की अपील डाली गई थी, और अब 5 साल बाद जाके 2022 में इस अपील को एक्सेप्ट किया गया, एंड गमोचा को जो कि असम का प्रोडक्ट है जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। आप जानते हैं जैसे माइग्रेशन मोबिलिटी, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अभी यूक्रेन का।
यूक्रेन में क्या हो रहा है, वॉर हुई तो यहाँ के जो लोग थे अब वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे तो वॉर चल रही है और ये दूसरी जगह जाके रिफ्यूजीज़ की तरह रहेंगे। ठीक, तो वहाँ पर इनका कोई लैंड नहीं है, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर माइग्रेशन क्या होगा कि हमें यहाँ पसंद नहीं आ रहा, हम दूसरी कंट्री में जाके रहना चाहते हैं। जैसे आजकल के यूथ को आप देख रहे हैं, यार रहे यूथ ग्रेजुएशन इंडिया में करके अपनी हायर स्टडीज़ कहाँ करना चाहता है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है। तो आप देखेंगे 2022 में जो डाटा निकल के आया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने एक तो सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन लोग इंडियन ने जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा, एंड सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर पढ़ने गए वो भी यहाँ हमें देखने को मिला। अगर चॉइस की बात करें, यूएस से सबसे प्रेफर्ड चॉइस रहता है लोगों का, ताकि स्टूडेंट्स का वो वहाँ जाके पढ़ सकें। इवन आप देखेंगे कनाडा का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे देखेंगे तो ये क्या था, इंडिया और फिनलैंड ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी इन ऑर्डर टू रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। जो ये मोबिलिटी होता है उस पर एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट हो सके, इसीलिए ये साइन किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने शोकेश किया वैगनार को। वैगनार हम जानते हैं कार है, ये किसकी है, मारुति सुजुकी है। तो वैगनार में अभी रिसेंटली एक फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार की तरह इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, मारुति सुजुकी के द्वारा। तो इसमें क्या रहेगा याद रखेंगे, फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल की कार वो, या फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कौन सी रहेगी मारुति सुजुकी की, वो है वैगनार। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि वैगनार में जो कि फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल लगा है, ये किस कंपनी की कार है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मारुति सुजुकी की। इट हैज़ डेवलप्ड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेटजीज एंड एमिशन कंट्रोल सिस्टम, जो कि BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करेगा और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के हिसाब से ये चलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली UNCTAD। ये UNCTAD क्या होता है, पहले तो इसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNCTAD होता है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की, ग्लोबल ट्रेड अपडेट। ये दिसंबर मंथ 2022 के में ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी और इसमें बताया गया कि जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है ना, वो 12% से बढ़ गया है 2022 में, एज कम्पेयर टू अगर हम देखें 2021 के। ठीक है, और ये जो एस्टिमेटेड है अराउंड 32 ट्रिलियन डॉलर के करीब हमें ये ट्रेड देखने को मिला। ट्रेड में बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसी के साथ साथ ये देखेंगे, अभी तो हमने ग्लोबल रिकॉर्ड देखा ट्रेड में, लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि अगले साल 2023 में यही रिकॉर्ड कम हो जाएगा। रीज़न बीइंग, एक तो इन्फ्लेशन जो इतनी ज़्यादा, जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आप कुछ भी प्रोडक्ट देख लीजिए, सर्विस देख लीजिए, उनके प्राइस हाई हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि इस इन्फ्लेशन के साथ ही साथ हमें बोला जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमें रिसेशन भी देखने को मिल सकता है, और रिसेशन की वजह से आप जानते हैं कि मंदी आ जाना बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए ये भी याद रखेंगे। फिर यहीं पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है ना बीबी, वो अराउंड 7% के करीब याद रखना फिस्कल ईयर 23 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया था, वो है वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। इस वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बताया जाता है कि वो कौन सी सिटीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि एक्सपेंसिव है। अगर आपको याद हो, पहले टेल अवीव जो कि कैपिटल सिटी थी इजराइल की, उसको वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल सिटी, या फिर इट वॉज द मोस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड थी, वो फर्स्ट पोजीशन पे थी। लेकिन अब इसी को धकेल के थर्ड पोजीशन पे कर दिया गया है, एंड इसको रिप्लेस किया है दो कंट्रीज जिसको याद रखेंगे। पहले पे सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी तो आ जाती है आपकी सिंगापुर। सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन देयर वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है आपका न्यूयॉर्क। थर्ड पोजीशन पे टेल अवीव जो कि इजराइल की कैपिटल है। तो ये तीन जो टॉप की हैं वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। इन्हीं के साथ साथ जैसे याद रखेंगे स्विट्जरलैंड की, ज़ुरिक स्विट्जरलैंड 6th पोजीशन पे, जिनेवा 7th पोजीशन पे, सैन फ्रांसिस्को 8th पोजीशन पे, पेरिस आपका 9th पोजीशन पे, कोपेनहेगन आपका एंड सिडनी ये 10th पोजीशन पे। यहीं पे ध्यान देंगे अहमदाबाद, चेन्नई एंड बैंगलोर ये बॉटम में थी, जिनका रैंक था अहमदाबाद 165, चेन्नई 164 और बैंगलोर 161st पोजीशन पे आ जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम जानते हैं, इन्होंने जामनगर गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोलने की बात की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अब न्यूज़ क्या है कि जो ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन होगा, ये एमर्ज करके आएगा एज द सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखेंगे। इसको एक हब की तरह सामने लाया जाके जा रहा है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का हब बनेगा फॉर ग्लोबल वेलनेस। यहीं पर आपको याद हो तो इंडिया ने खुद इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी, और यहाँ पर इंडिया ने अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखें तो $250 मिलियन लगाने की बात की एज अ प्राइमरी इन्वेस्टर, जो कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस पे रहेगा। यही 35 एकड़ की लैंड पे बना है और 2024 तक इसको ऑपरेशन में लाने की बात की गई। इसी के साथ साथ 10 ईयर की फंडिंग फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रनिंग कॉस्ट, इसका भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। फिर इसी की बात करें तो यहाँ पे काम क्या रहेगा इस सेंटर का, टू एक्ट एज अ मेंटर फॉर द डेवलपमेंट एंड शेपिंग हेल्थ रिसर्च एजेंडा। इसमें से फिर आ जाता है क्रिएट नॉर्म्स, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस की जो टेक्निकल डोमेन होगा, टूल्स होगा, मेथडोलॉजीज होगा, डाटा कलेक्शन होगा, उसके क्या नॉर्म्स होंगे, गाइडलाइंस होंगी, रूल्स होंगी। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिल्ड करना WHO के साथ एंड उनकी बाकी कंट्रीज के साथ इन द रिस्पेक्टिव एरियाज, टू एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन डेवलपिंग guidelines for health technology assessment and health economics inferred from traditional medicines and support countries। ठीक, मोटा मोटा क्या याद रखेंगे, ताकि एक रूल्स को डेवलप किया जा सके, गाइडलाइंस को लाया जा सके, ताकि सब मिलके एक साथ रिसर्च कर सके इन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेडिसिन के डोमेन में। नेक्स्ट यहीं पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये एक आउटपोस्ट सेंटर रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा में जो है उसका, जो कि फंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान और द्वारा। इसी में जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट रहेगी, फर्स्ट एज अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इंडिया की रहेगी $250 मिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस को लाने के लिए। 35 एकड़ की लैंड पे है, जामनगर में है, गुजरात में है, और 2024 तक इसको बनाने के रेडी करके ऑपरेशन में लाने की बात की गई। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम जानते हैं 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन क्या होता है, जो कि हमारा सन यूज़ करता है। फ्यूजन में क्या होता है, 2 छोटे एटम्स को, छोटे पार्टिकल्स को हम मिला के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, जिससे क्या होता है, क्लीन एनर्जी रिलीज होती है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी रिलीज की जाती है। ये अभी तक सस्टेनेबल नहीं था, रीज़न बीइंग कि इसको जो हम अमाउंट ऑफ इनपुट देते थे एनर्जी का, वो ज़्यादा होता था और आउटपुट कम होता था। लेकिन अभी रिसेंटली USA के साइंटिस्ट के द्वारा यही ब्रेक थ्रू कन्फर्म किया गया है कि हमने जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेस है, उसको इस्टेब्लिश कर लिया है, और जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है अब वो सस्टेनेबल है। एंड रीजन क्या है कि जो नियर टू लिमिटलेस एनर्जी ये जनरेट करता है, और जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमें रिटर्न में ये प्रोवाइड करता है। सिमिलर टू ऐसे समझो जैसे बैंक की FD हो गई, वहाँ पे कुछ रिटर्न फिक्स होता है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ये मिल जाएगा। ये अभी रिसेंटली US के साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। फिर फिजन क्या होता है, फिजन होता है एक बड़े आर्टिकल को 2 छोटे छोटे में तोड़ना, और फ्यूजन हो गया 2 छोटे छोटों को मिला के एक बड़ा बनाना। यहीं पे अगर हम बात करें फ्यूजन क्या है, व्हेन 2 और मोर एटम्स आर फ्यूज्ड इनटू 1 लार्ज एटम। नेक्स्ट थिंग क्या याद रखेंगे, यहाँ पे ट्रीटियम और ड्यूटेरियम का यूज़ किया जाएगा फॉर द सेम, जो कि आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ये सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोस्निया की। बोस्निया नहीं, बोस्निया को अभी रिसेंटली EU की मेंबरशिप का अप्रूवल मिल गया है, तो मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस इनको दे दिया गया है EU के द्वारा। याद रखेंगे EU की ही अगर मैं बात करूं, EU के कितने मेंबर्स हैं, 27 EU नेशंस हैं, इन्होंने एग्री किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CBDT ने अभी एग्जेम्प्ट किया है कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स है ना, उनको 10F ई फिलिंग करने से, या 10F का जो फॉर्म है उसको फिल करने से मना किया। भी उनकी जो डेडलाइन है उसको 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड रीज़न क्या है कि वो रेजिडेंट नहीं है हमारे यहाँ के, तो उनको जो टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर वहाँ यहाँ का क्यों टैक्स भरना पड़े, वो अपनी कंट्री का भरेंगे, तो 2 जगह टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम 10F फॉर्म ई फिलिंग। और उनको 31 मार्च 2023 तक का टाइम दिया कि वो मैनुअली वहाँ पे फिर बाद में फॉर्म भर सकते हैं।
मूविंग ऑन, HDFC बैंक की बात करें, इन्होंने अभी एक्वायर करने की बात की 7.75% स्टेक इन मिनटॉक। ये मिनटॉक क्या है? ये आपका एक फिनटेक स्टार्टअप ही रहेगा। ये आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड काफ़ी अलग नई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से 31.14 करोड़ की लागत से 7.75% का स्टेक एक्वायर किया गया HDFC बैंक के द्वारा। किसमें? मिनटॉक में, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म रहेगा। यह डील आपकी 31 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। देखो अभी मैंने बताया था इंडिया की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट वो क्या है? अराउंड 7%। ये है इंडिया की, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन आ रखी है और रिसेशन आ रखी है, जो हमने बात किया कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 23 मतलब 2022 से 23 के लिए जो रखी गई वो तो 7.7% की ही रखी, लेकिन जो बाकी एशियन नेशंस हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। इट हैज़ बीन स्लैश डाउन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहीं पे अगर मैं बात करूं जो एशिया के एंड पैसिफिक रीजन के डेवलपिंग नेशन है, उनकी पहले 4.5% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई थी ग्रोथ की, वही अब स्लैश करके कम करके कितनी कर दी है? 4.4% फॉर 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली कंट्री कौन सी बनी है, या फिर वो अभी कंट्री कौन सी है, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने सैटेलाइट टेलीकॉम या फिर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करा है। आई रिपीट, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन अभी किस कंट्री के द्वारा किया गया और वो पहली कंट्री बनी ऐसी, वो है हमारी इंडिया। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, और इसी को क्या बोला गया? ये पहली कंट्री बनी टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम, जिसको सैटकॉम स्पेक्ट्रम के नाम से बोला गया। ठीक है, इससे क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट की जाएंगे इन द सैटकॉम सेक्टर। इस सैटकॉम सेक्टर की मदद से जो क्या होगा, हमारा ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन है अक्रॉस इंडिया वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? जो डिजिटल डिवाइड है, अभी आप देखेंगे अर्बन एरियाज में तो आप इजीली किसी भी इंटरनेट सर्विस को, डिजिटल सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है, ऐसे रोड हैं, ऐसे गांव हैं अभी जहाँ पर आपका रोड भी नहीं पहुँचे हैं प्रॉपर, वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये बात किया गया है। इसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं स्टारलिंक का। स्टारलिंक क्या है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड अर्थ के कई हजार सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी, जो कि मदद करेगा टू प्रोवाइड इंटरनेट इवन इन द रिमोट एरियाज। इवन यहीं पे आप देखेंगे वनवेब, जो कि स्टारलिंक की एक राइवल कम्युनिकेशन कंपनी है, वो भी सेम टाइप का एक नेटवर्क, एक जाल सा इस्टेब्लिश कर रही है ऑल अराउंड द अर्थ, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। एंड अगर बात करें टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, स्टारलिंक जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, इनकी टेस्ला कंपनी ने ही अभी अपनी राइवल कंपनी, मतलब कहा जा सकता है एक तरीके से राइवल ही हो गई स्टारलिंक किया तो इनकी 40 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई थी इनटू स्पेस। वनवेब की बात करें तो ये कहाँ की कंपनी है? यूके की कंपनी है। फिर सैटकॉम पर वापस आए तो सैटकॉम सिस्टम कैन सपोर्ट 5G ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज एंड कंटेंट फॉर मल्टीपल वर्टिकल्स, और 5G को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी थी इंडिया में? वो थी एयरटेल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो सैटेलाइट्स को भी यहाँ पे आगे यूज़ किया जा सकता है। IoT का यहाँ पे बहुत बड़ा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, 5G की स्पीड बढ़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर आपको याद हो, इसी के इवेंट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया से बैठ के, आई थिंक कंट्री का मेरे को नाम याद नहीं, बट इट वॉज अ फॉरेन कंट्री, जहाँ पे रिमोट का कंट्रोल कार को ऑपरेट करा था इंडिया में बैठ के विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं FIEO। FIEO क्या है आपका? ये है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया शिप रॉकेट के साथ। ये रीज़न क्या था MOU साइन करने का? ताकि जो MSME है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मदद की जा सके, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शेपकेस किया जा सके ऑन द इंडियन बिजनेस पोर्टल IBP पे, उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जा सके, शोकेस किया जा सके, एक्सपोर्टर्स की मदद की जा सके कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कि क्या हम एक्सपोर्ट में क्या ज़रूरी होता है, कैसे आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे ऑडियंस को लाना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हेल्प की गई शिप रॉकेट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे 15% का डिस्काउंट अवेल किया जाएगा ऑन इंटरनेशनल शिपमेंट टैरिफ बाय FIEO मेंबर्स। FIEO की ही अगर मैं बात करूं
1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ कौन रहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के? वो हैं डॉक्टर अजय शाह। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स की। अभी रिसेंटली वो कौन सी एयरलाइंस है जिसको सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित करा गया? वो है स्पाइस जेट। फिर ये जो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का चेक होता है, ऑडिट होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ICAO के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज ये याद रखेंगे, इस अवार्ड को, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड को स्पाइस जेट को कहाँ दिया गया? GMR दिल्ली में एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान, GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान न्यू दिल्ली में इन अवार्ड से स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया, जो कि अवार्ड का नाम रहेगा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से। नेक्स्ट बात करते हैं जिंदल स्टील एंड पावर की। इन्होंने अभी फिक्की CSR अवार्ड को जीता फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। आई रिपीट, जिंदल स्टील एंड पावर, इनको ऑनर किया गया फिक्की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल कमेंडेशन अवार्ड से। तो ये CSR क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर एफर्ट्स, ताकि इन्होंने जो कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ जो एक जंग छेड़ दी थी, जो उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे जिंदल स्टील पावर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे NTPC ने अभी एक स्पेशल जूरी अवार्ड जीता फॉर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इट वाज NTPC। फिक्की की बात करें तो अरुण चावला यहाँ पर डायरेक्टर जनरल रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, और 1927 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाती हैं सिंडी हुक। इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करेंगे कि कौन नई CEO बनी है 2032 की ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। वो है सिंडी हुक, और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में इनको ये अपॉइंटमेंट दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं KRAS। KRAS क्या है? कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम। इनको रिसेंटली 1000 MRSAM जो कि है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डील दिया गया था वर्थ $100 मिलियन 2019 में। तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना 100th MRSAM किट को अभी डिलीवर किया है, जो कि है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट की डिलीवरी की गई 100th की। ठीक है, किन्होंने की? कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम ने। किसको की? इंडियन आर्म फोर्सेस को की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी अराउंड 70 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डाटा और याद रखेंगे यहीं पे, अराउंड 239 स्पीशीज फ्रॉम इंडिया एंटर्ड इनटू द IUCN लिस्ट। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में अभी रिसेंटली इंडिया की कितनी स्पीशीज रेड लिस्ट में आई? तो वो है 239। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की। 14 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इट इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द लिमिटिंग एनर्जी लॉस एंड शोकेस द अचीवमेंट ऑफ इंडियन एनर्जी। यहीं पे बात करें तो इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। किसका जॉइंट वेंचर है? इंडिया एंड फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली वेदर डाटा कलेक्शन को देहरादून में बढ़ाने के लिए, उसके डाटा कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें जो रिसर्च की जाती है उसको बेटर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो फॉरकास्ट रहेगा वेदर का इन देहरादून, तो उसके लिए उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इंडिया मीटियोलॉजिकल सेंटर ने एक MOU साइन किया DMMC हॉल में, जो कि देहरादून उत्तराखंड में। आई रिपीट, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंडियन मीटियोलॉजिकल सेंटर के साथ DMCC हॉल में देहरादून उत्तराखंड में एक MOU साइन किया, ताकि जो वेदर का डाटा है, उसका कलेक्शन है, वेदर का प्रिडिक्शन है, उसको बेटर किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम वन लाइनर्स पे। ये तो हो गए करंट अफेयर्स आज के। अब रिवीजन करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में इनका। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया टू डेवलप कृषि DSS।
असम का एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, वो है गमोचा। इंडिया एंड फिनलैंड ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। मारुति सुजुकी ने शोकेस किया वैगनार को, जो कि इनकी पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार बनी। ग्लोबल ट्रेड का जो हमें डाटा आया 2022 का कि $32 ट्रिलियन का हमने ग्लोबल ट्रेड किया है और ये हाईएस्ट रहेगा अभी तक। फिर UNCTAD ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2022 की बात करें, इसी में ये डाटा को रिलीज किया गया था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे रहा, न्यूयॉर्क सेकंड पोजीशन पे और टेल अवीव थर्ड पोजीशन पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में है। यूएस ने कंफर्म किया मेजर ब्रेक थ्रू इन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन याद रखेंगे और यही सन में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दो छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल बनाया जाता है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने बॉस्निया को अभी ऐड करा। सीबीडीटी ने एग्जेम्प्ट कर दिया एनआर टैक्स पेयर्स को फ्रॉम मैंडेटरी फ्रॉम 10F ई फाइलिंग के 31 मार्च 2023 तक। HDFC बैंक एक्वायर करेगा 7.75% स्टेक इन मिनटॉक फॉर 31.14 करोड़ रुपीस। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो एशिया की नेशंस है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रिड्यूस कर दिया टू 4.2% इन 2022। Government of India repays IL&FS loan to ADB and KfW to fulfill the commitment. India to be the first country to auction satellite spectrum. FIEO ने साइन किया MOU with Ship Rocket to support MSME exports. Shipjet awarded Safety Performer of the Year award during GMR Delhi Airport Awards के लिए। Next, Cindy Hook appointed as the CEO of 2032 Olympic Organizing Committee. NSE and BSE gave in principle approval to HDFC Limited to transfer NCDs to HDFC Bank. क्रास ने रोल आउट किया 100th मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मिड सेक्शन किट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। IUCN ने कितने 239 स्पीशीज को, इंडियन स्पीशीज को अभी रिसेंटली रेड लिस्ट में ऐड किया है। ये भी डाटा आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है। देन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। USDMA एंड मीटियोलॉजिकल सेंटर ने कभी MOU साइन किया टू कलेक्ट लोकेशन स्पेसिफिक वेदर डाटा इन वेदर देहरादून, और यहाँ पे प्रिडिक्शन को और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। यूनिसेफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है बताइए। फिर फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन कहाँ पर था, इसका मुझे टारगेट ईयर भी बताना, दोनों कार्बन न्यूट्रल का और 100% रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने का। इसी के साथ साथ यहाँ पे बताओ आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और रिपब्लिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, दोनों का डिफरेंस भी लिखना साथ साथ। फिर व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 2022 की थीम बताओ। थीम के साथ साथ बताओ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बताइए। फिफ्थ, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग कहाँ पर हुई थी। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, सेशन पसंद आए और आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में भी लाते रहें तो कमेंट ज़रूर करना, और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.